Hello and very good morning, my dear students. How are you, bete? So today I am going to revise the revision video lectures of chapter Gauss theorem, and tomorrow I will send you videos lecture of electrostatic potentials. And you, as you know, that the two chapters, that first is Gauss theorem, second is electrostatic potentials, is the part of unit test syllabus, and these two chapters consist of objective type questions. Okay, 30 question, each of 1 marks each. Okay, and all the questions are of objective based questions. And so let's start now revision of chapter Gauss theorem. So first of all, let's start. What is the electric flux? Electric flux is the electric field lines, okay, that is crossing the surface normally. So let this one is a surface area, and if the normally electric field lines passing through it one, then that जितना field lines उसमें से cross करेगा, that is known as the flux. Okay, crossing the flux normally, and this flux is a scalar quantity and is denoted by phi. Okay, if the electric field is equal to E cos theta, if the electric field is surface with the surface is making angle theta, okay, then flux का वैल्यू कितना आएगा बेटे? For small surface area, small field will pass, and this field will pass is at certain angle theta. So this is a scalar quantity, so it is dot product. So small area, small flux है तो d phi, which is equal to E dot dx, where electric field into ds क्या है? Small surface area. And dot product को जब हम finish करते हैं, what we get the de cos theta. Okay, so E dot ds, this is small flux. For total surface का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. Integrating of equation number this, then we have a, for the closed surface we have a E dot ds is equal to phi. So this is mathematical expressions for electric flux. Okay, so let's start one numerical. This is the mathematical representations. Units of electric flux is Newton meter square coulomb inverse. Okay, and this is the mathematical expressions of electric flux. Let's do one numerical, that is a electric field. So you have given field value given, okay, and calculate electric flux through a surface area of this. अब देखिए बेटे, surface area you have given 20 units lying in YZ plane. जब YZ plane हो, इसका मतलब कि surface area किस तरफ होगा? Electric flux is along direction of X axis. ठीक है, सरफेस एरिया इज लॉन्ग एक्स एक्सिस. अगर वो वाई जेड प्लेन में है, अगर वो एक्स वाई में होता तो वो जेड में होना था. अगर वो एक्स जेड में है तो फिर उसने वाई में होना था. ठीक है, तो यहाँ से हमने जो सरफेस एरिया लिया है वो किस में आएगा? एक्स एक्सिस में. एक्स के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? आई. एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर, वाई के लिए जे, एंड जेड के लिए के यूनिट वेक्टर. सो एज दिस वन इज लॉन्ग, सरफेस एरिया इज लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए कितना आएगा? 20 यूनिट वेक्टर. तो डॉट प्रोडक्ट होगा, फ्लक्स फाइंड करना है. फ्लक्स क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया. दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. आई यूनिट वेक्टर का वैल्यू आएगा 1. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी एज यू हैव स्टडी इन +1 क्लास. तो बाकी के जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना, आई डॉट जे डॉट के, सबका वैल्यू 0 आएगा. सो सिंपली 20 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज 120 यूनिट्स. दिस इज द आंसर. तो बेटे याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्लक्स वैल्यू. तो आपने इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी, तब उसको मैचअप करवाएंगे. ठीक है, गॉस थ्योरम को आपने वैसे याद रखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस तो कुछ आएगा नहीं वैसे. ठीक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल पोर्शन या कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो आपने जरूर याद रखनी है. लाइक दिस वन, spherical Gaussian surface and closed charge. This one, calculate electric flux passing through surface. फ्लक्स निकालना है तो हमें चार्ज वैल्यू गिवन है, तो अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है. अब साइलेंट नोट की सब्स्टिट्यूट करके फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा. एक और चीज़ पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ वुड द फ्लक्स चेंज. ये भी क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बेटे आ जाता है. अब देखिए,
रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस होता है उसको हम एज्यूम करते हैं, ये है एक्चुअल सरफेस। तो हम गॉसियन सरफेस को चाहे मैं यहाँ पे जूम करूँ चाहे मैं यहाँ पे यूज करूँ, तो अगर उसका रेडियस से मैं डबल भी हो जाए तब भी उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ वुड द फ्लक्स चेंज? सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करता है उसके चार्ज पे। बेटे जितना चार्जेस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना कि गॉसियन रेडियस के। गॉसियन जो हमारे पास सरफेस एरिया आता है उसका रेडियस इंक्रीज हो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, नो मैटर, there is no effect of electric flux when the radius of Gaussian surface is double. It is because the charge enclosed by Gaussian surface remain the same. तो चार्ज तो सेम ही हुआ, अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हुई, तो Gaussian surface है उसके साथ कोई रिलेशंस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉसियन थ्योरम। तो प्रूफ तो हमने ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, आप इसको रिवाइज कर लेना, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड में इसका कुछ नहीं आएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्लेवरली, क्लेवरली मतलब हम इसको चूज इन क्लेवरली, तो जो भी चार्ज का सरफेस होता है उसको हम क्लोज कर देते हैं क्लेवरली, ठीक है। तो उस जो क्लोजन जो सरफेस को हम क्लोज करते हैं, सच सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, ठीक है। और देखते हैं टू डिड्यूस द कोलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब डिडक्शन वैल्यू थोड़ा आनी है, लेकिन आपको इतना वैल्यू पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो बेटे एक बात और याद रखिए, आपकी बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम से रिलेटेड हो एंड किससे साथ रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, तो वो उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपने सारे के सारे गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और क्या है, ये तो प्रूफ है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लाइन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर चार्ज लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशंस क्या है, ये वाला है, या फिर यहाँ पे ऊपर 4 का वैल्यू हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी राइट आंसर होगा उसी को आपने कर देना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द आर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। एंड लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमें पता है फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस किसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है। एंड इन केस ऑफ फाइंडिंग द इनफाइनाइट टू प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस then we have a region 1 2 3 we have to find। तो region 1 2 3 के region में हमने इसके पार्ट्स किए थे, और लास्ट पार्ट्स में हमारे पास क्या था, इन केस ऑफ लास्ट पार्ट वी हैव अ, और क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो हमने एक शेल का स्टडी किया था और किया था उसका सॉलिड स्फीयर। शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों के केस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस लास्ट का थर्ड केस था डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, पॉइंट पी ये शेल है, शेल के आउटसाइड पॉइंट पी लिया, इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ गया था ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू किसकी, हमने वैल्यू फाइंड आउट की है सबसे पॉइंट पी लाइज आउटसाइड के लिए, ये पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल तो रेडियस उसका चेंज हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेस्ट ऑफ वैल्यूज क्या आएगी सेम। एंड पी लाइज इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल, इनसाइड में चार्ज का वैल्यू 0 है, इफ चार्ज वैल्यू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0, ओके। तो ये जो इसके रिजल्ट पार्ट है ये भी आपको पूछ सकते हैं इन द क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। इसमें भी 3 केस सेम के सेम ही रहेंगे, लास्ट का केस ही इसमें सिर्फ चेंजेस होगा, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज रिमेन सेम। लाइक द पार्ट फर्स्ट का सेम है, पार्ट सेकंड का भी सेम आएगा, थर्ड केस में भी हम इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटे इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं
जैसे कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए न्यूमेरिकल पार्ट। सो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थीटा गिवन है कितना, 60 डिग्री। साइड्स गिवन है, सरफेस एरिया का साइड गिवन है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर आपका एरिया हो गया, फील्ड है थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डॉट प्रोडक्ट है ना, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। सब वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यूज आएंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस आपको आएंगे इस चैप्टर में से वो कैसे होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे बेटे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो आपने चैप्टर एंड में CBSE के क्वेश्चंस हैं, NIIT के हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम, मेडिकल एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है आपको, किसके साथ रिलेटेड, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। इन सब को आपने अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको बहुत हेल्प होगी इसमें से बेटे। So also try to solve the numericals related with this, because numerical के साथ related मैंने questions भी डाले हुए हैं। So calculate the numbers of electric lines of force originating from a charge of 1 coulomb। चार्ज ऑफ 1 कूलम होगा तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट वैल्यूज, फाई इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें आप पुट कर दो, वैल्यूज आ जाएगा। सो लेंथी न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट फॉर योर better understanding, but yes, a very short answer type question is also can be added in the objective based questions। तो ये जो frequently asked very short answer questions हैं, इसमें से बहुत सारे questions जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं, because it will help you, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, इसके यूनिट्स भी आ सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपको, state the Gauss theorems in electrostatics। Okay, so more questions can be asked in this one part। I have already sent you a PDF format of these all questions। Okay, आपके पास बुक्स भी होंगी तो आपने बुक से सारा का सारा रिवाइज कर लेना है। एंड चैप्टर एंड्स न्यूमेरिकल्स आल्सो गिवन, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, like on calculations of electric field on the Gauss theorem। So lengthy numericals need not, but simple numerical calculation part is very important। So all the students, please try to understand। So you have to do practice more and more of this chapter Gauss theorem। एक बार चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सिंपल न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से आपने रिवाइज कर लेने हैं। ओके, बाकी का वीडियो मैं कल बनाऊंगा, किसका चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। टिल देन वर्क हार्ड बेटे, थैंक यू।